Hello guys and welcome back to another fresh episode of your favorite show about gadgets. Guys, you know the answer. It's Gadgets 360 with Technical Guruji. This episode is very special. उसका एक reason है, and the reason is what you see right behind me, guys. This is the Steve Jobs Theater at the Apple Park. And I am standing right in front क्योंकि I am here for the Apple's annual developers event which is Worldwide Developers Conference. इस बार बहुत कुछ नया Apple अनाउंस कर दिया है. साथ में इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स और आपके सवालों के जवाब भी दूंगा. बेसिकली कंपाइलिंग एवरीथिंग जस्ट फॉर यू. हर एपिसोड की तरह इस बार भी बहुत मजा आने वाला है. लेट्स सी व्हाट वी हैव स्ट्रेट फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स ऑफ एप्पल इन दिस वीक्स एपिसोड. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव AKA टेक्निकल गुरुजी. यू आर वाचिंग गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी. तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Guys, as always, let's just start with every episode's basic ritual जो हमको हर बार करना पड़ता है because the world of gadgets is, let me tell you, moving very fast. तो एक बार एक quick recap लेते हैं just to know what all happened in the past week in this section, news of the week. In a significant update for Pixel users, Google's June 2024 feature drop रोल आउट कर रहा है Pixel 8 and Pixel 8a के लिए several key features जो यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने वाले हैं. Gemini Nano, Google's experimental conversational AI model, अब as a developer option available है on these devices. Find My Device feature अब allow करता है tracking of the Pixel 8 series even when powered off or with a dead battery. Users अपने devices को connect भी कर सकते हैं to larger displays via USB-C for an enhanced viewing experience. The update packed with these features is being released in phases to all supported Pixel devices running Android 14, promising a more seamless and efficient user journey. CMF ने अपने वेबसाइट पे ऑफिशियली अपने पहले स्मार्टफोन CMF1 को टीज किया है और नथिंग ने अपने X हैंडल पे 15 सेकंड टीजर वीडियो शेयर किया है टाइटल रीइन्वेंटिंग द व्हील, जो उनके स्मार्ट डायल को रेफर करता है. वीडियो में 3 रोटेटिंग डायल्स दिखाए गए हैं. पहला डायल CMF Phone 1 का लगता है और बाकी 2 डायल CMF Buds 2 और CMF Watch Pro 2 के हो सकते हैं. Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च किया अपना नया स्मार्टफोन Xiaomi 14 CV. ये फ़ोन Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 मोबाइल प्लेटफॉर्म पे चलता है और Leica ब्रांडेड 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरास के साथ आता है. कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर हैं. फ्रंट में 2 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरास भी हैं. ये क्रूज ब्लू, माचा ग्रीन और शैडो ब्लैक कलर्स में अवेलेबल होगा. Breaking news for gamers, Black Ops 6 has officially been revealed. Developed by Treyarch and Raven Software, ये Call of Duty installment एक spy action thriller है set in the early 90s, Cold War के एकदम बाद. एक्सपेक्ट करिए एक माइंड बेंडिंग नैरेटिव, ट्विस्ट्स एंड टर्न से भरा हुआ. इन द कैंपेन you'll dive into a secret conspiracy where a shadowy force has infiltrated the US government. Branded as a traitor, you will have to go rogue and fight the very machine that created you. इसके इंटेंस स्टोरी लाइन और साइकोलॉजिकल रेवलेशंस के साथ Black Ops 6 प्रॉमिस करता है टू डिलीवर द सिग्नेचर Black Ops एक्सपीरियंस. Friends, starting with the top story this week, you know why I'm here. जो मेरा बैज है इस पे आपको लिखा हुआ दिखेगा WWDC 24. This is Apple's Worldwide Developers Conference. और ये जो Apple का एनुअल इवेंट होता है ना, यहाँ पे we always get information about the new software. For example, the iOS 18, maybe the latest Mac OS, the latest Watch OS, the latest iPad OS, TV OS, new features to AirPods, and मतलब बहुत सारी चीज़ें Apple हर साल अनाउंस करता है अपने इसी जून इवेंट में. And guys, this time This event was a power-packed one because हमको सब नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानने को तो मिला ही, but at the same time we got one more thing which is AI. And AI here stands for Apple Intelligence, not Artificial Intelligence. Apple ने इसको एक नया टर्म दिया है and it is very interesting. Let's see up close एक एक करके कि आखिर जो नए सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं उसमें Apple की तरफ से अभी आपको क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं. इस साल के WWDC कीनोट में रिवील किया गया Apple Intelligence, एक पर्सनल इंटेलिजेंस सिस्टम जो जेनरेटिव मॉडल्स की पावर को यूजर्स के पर्सनल कंटेंट के साथ कंबाइन करता है और ये आपको ऐसी इंटेलिजेंस देगा जो काफी यूजफुल और रेलेवेंट होती है.
iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia और watchOS 11 में भी मेजर अपडेट्स आए हैं। iOS 18 के साथ यूजर्स अब अपने होम स्क्रीन पर एप्स और विजेट्स को भी किसी ओपन स्पेस में अरेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के बॉटम में बटन्स को कस्टमाइज करना और कंट्रोल सेंटर में ज्यादा कंट्रोल्स को क्विकली एक्सेस करना भी अब पॉसिबल है। द फोटोज ऐप हैज गॉट इट्स बिगेस्ट रीडिजाइन एवर, जिसमें फोटो लाइब्रेरीज को ऑटोमेटिकली एक न्यू सिंगल व्यू में ऑर्गेनाइज किया जाता है और हेल्पफुल न्यू कलेक्शंस फेवरेट फोटोज को इजीली एक्सेसिबल रखते हैं। आई मैसेज में भी ऑल न्यू टेक्स्ट इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, जो किसी भी लेटर, वर्ड, फ्रेज या इमोजी को डायनामिक एनिमेटेड अपीयरेंसेस के साथ एम्पलीफाई करते हैं और कॉन्वर्सेशंस को ट्रूली अलाइव बना देते हैं। यूजर्स अब मैसेजेस ऐप के थ्रू सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे सेल्यूलर या वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल हो या ना हो। मैक ओएस सिकोया के साथ आईफोन और मैक के बीच कंटिन्यूटी और भी बेहतर हो गई है आईफोन मिररिंग के साथ, जो मैक से डायरेक्टली आईफोन का फुल एक्सेस और कंट्रोल देगा। सफारी में एक और बड़ा अपडेट आया है नए हाइलाइट्स फीचर के साथ, जो वेब पेजेस पर ब्राउजिंग के टाइम एफर्टलेस इंफॉर्मेशन डिस्कवरी को एनेबल करता है। गेमिंग अब और भी इमर्सिव हो गई है पर्सनलाइज्ड स्पेशल ऑडियो के साथ, जो प्लेयर्स को एक्शन के बीच में डाल देती है। एंड नाउ वी आल्सो गेट टू सी गेमिंग मोड। एप्पल इंटेलिजेंस अनलॉक्स न्यू वेज जिससे मैक यूजर्स अपनी राइटिंग को एनहांस कर सकते हैं और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड्स में प्लेफुल इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं एंड लॉट्स मोर। एप्पल इंटेलिजेंस एप्पल सिलिकॉन और उसके न्यूरल इंजन के फुल पावर का फायदा उठाता है और मैक जो M सीरीज चिप्स के साथ आता है, दे विल गेट द एप्पल इंटेलिजेंस अपग्रेड। watchOS 11 ले आता है पावरफुल हेल्थ एंड फिटनेस इनसाइट्स एंड मच मोर पर्सनलाइजेशंस। द न्यू वाइटल्स ऐप की हेल्थ मेट्रिक्स और कॉन्टेक्स्ट दिखाता है, ट्रेनिंग लोड मेजर करने की एबिलिटी वर्कआउट को एक गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस बना देता है। एंड नाउ द पॉपुलर एक्टिविटी रिंग्स और भी ज्यादा कस्टमाइजेबल हो गई हैं। स्मार्ट स्टैक और फोटोज फेस इंटेलिजेंस यूज करके ज्यादा इंडिविजुअलाइजेशन फीचर्स करते हैं और एप्पल वॉच और हेल्थ ऐप आईफोन और आईपैड पर प्रेग्नेंट यूजर्स के लिए एडिशनल सपोर्ट भी देते हैं। चेक इन, ट्रांसलेट ऐप और डबल टैप जेस्चर्स के नए कैपेबिलिटीज एप्पल वॉच पर कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस को और आगे ले जाते हैं। जस्ट विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ इट्स रिलीज, विजन OS 2 लेकर आया है मोर पावरफुल स्पेशल कंप्यूटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर द एप्पल विजन प्रो, जिसमें यूजर्स को अपने लाइब्रेरी में अवेलेबल इमेजेस से स्पेशल फोटोज क्रिएट करने का एक नया फीचर मिलता है। इंट्यूटिव हैंड जेस्चर से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक नजर में इजीली एक्सेस करने का मौका मिलता है। और मैक वर्चुअल डिस्प्ले, ट्रैवल मोड और गेस्ट यूजर के लिए नए फीचर्स अवेलेबल हो गए हैं। विजन OS 2 में शेयर प्ले फॉर फोटोज और टीवी ऐप में भी मल्टी व्यू जैसे एक्साइटिंग न्यू कैपेबिलिटीज इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। टीवी OS 18 के साथ इंटेलिजेंट न्यू फीचर्स जैसे इनसाइट और एनहांस डायलॉग और सबटाइटल्स के अपडेट्स सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। होम ऐप को iOS 18 के साथ नए फीचर्स मिलते हैं, जैसे गेस्ट एक्सेस और हैंड्स फ्री अनलॉक विद होम कीज, जो घर तक एफर्टलेस और सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। एयरपॉड सॉफ्टवेयर अपडेट्स यूजर्स के उस तरीके को ट्रांसफॉर्म कर देंगे जिससे वो सिरी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ कॉल करते हैं और अपने फेवरेट गेम्स में फुली इमर्स हो जाते हैं। Now guys, speaking of all these new softwares, I mean आपने देख लिया कि क्या क्या नए फीचर्स आ गए हैं इन द लेटेस्ट iOS, द न्यू macOS Sequoia, द न्यू iPadOS, Apple Watch कैसे और स्मार्ट हो गई, ये सब बातें तो हैं, बट गाइज देयर इज द बिगेस्ट थिंग विच इज Apple Intelligence, aka AI, and how Apple is trying to make all its devices work in a smarter way, जहाँ पे वो आपके लिए कुछ अच्छे तरीके से काम करते हैं, in a way enhancing your lifestyle, और आपको देते हैं बहुत सारे ऐसे experiences जहाँ पे आपको लगता है कि yes, the phone or your laptop is really smart. So let's see up close what's Apple's take in this world of AI with Apple Intelligence, and उसमें क्या क्या नए नए फीचर्स हमको मिले हैं. Quite interesting approach to be honest, because there are many things which are done on device and then there are a few things जो होती हैं cloud में, but उसके लिए भी Apple's got the latest, I mean a very unique approach of private cloud compute, because यहाँ पे guys privacy is one of the most important pillars that Apple has established in the field of all personal computing devices, और AI के field में भी privacy Apple की तरफ से is like really up there, and Apple is trying to build everything from ground up while privacy is really at the center of it. तो एक बार हम देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में what exactly is this Apple Intelligence all about, और ये आपके फ़ोन को जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं उसके एक्सपीरियंस को कैसे एनहांस करने वाला है.
एप्पल इंटेलिजेंस एप्पल सिलिकॉन के पावर को हार्नेस करता है लैंग्वेजेस और इमेजेस को समझने और क्रिएट करने के लिए, एप्स के बीच एक्शन लेने के लिए और यूजर्स के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट से ड्रॉ करके एवरीडे टास्क्स को सिंप्लीफाई और एक्सेलरेट करने के लिए। एप्पल इंटेलिजेंस को iOS 18, iPad OS 18 और Mac OS Sequoia में काफी डीपली इंटीग्रेट किया गया है। इसका एक कॉर्नरस्टोन ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग है जो यूजर्स के डेटा को कलेक्ट किए बिना पर्सनल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट AI में प्रिवेसी का एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है जिसमें ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग और डेडिकेटेड एप्पल सिलिकॉन सर्वर्स पर चलने वाले लार्जर सर्वर बेस्ड मॉडल्स के बीच कंप्यूटेशनल कैपेसिटी को फ्लेक्स और स्केल करने की कैपेबिलिटी होती है। So guys, there you have it, everything that Apple announced right at this Apple Park. And जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना, एक अलग ही vibe होती है. I mean, this entire setup is huge. काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी positive, काफ़ी energetic feel होता है. वैसे इसी से मेरे को एक बात याद आती है guys, because we are talking about this developers conference. Did you know that when the first iPhone came in the year 2007, उसमें कोई App Store नहीं था. जी हाँ, there was no app store whatsoever. आपके पास में वही एप्स थी जो एप्पल ने फ़ोन में इंस्टॉल करके दी थी. इवेंचुअली अगले साल ऐप स्टोर का जन्म हुआ एंड I mean today all know that how पॉपुलर दिस ऐप स्टोर इज. और आपको कोई भी लेटेस्ट ऐप अगर यूज़ करनी होती है, एप्पल्स गॉट ऑल द एप्स इन देयर ऐप स्टोर. इनफैक्ट काफ़ी ऐप्स तो ऐसी हैं जो सबसे पहले ऐप स्टोर पे आती हैं. फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम केम ऑन टू द ऐप स्टोर फर्स्ट बिफोर इट केम टू एंड्रॉयड. लेकिन सोच के देखो कि 2007 में जो पहला आईफोन आया था, there was no app store. Guys, do you know this? If yes, then amazing. If no, then please let me know by dropping in all your emails. You know the address. It's tg@interview.com. मैं देखता हूँ कि आखिर आपको ये फैक्ट पता है या नहीं, या फिर कुछ और अगर कहना है ना, यू कैन जस्ट राइट योर ईमेल्स. बाय द वे, मैं आपसे मिलता हूँ अभी ब्रेक के बाद, बिकॉज एपिसोड में अभी तो केवल शुरुआत हुई है. आई हैव गॉट वन अमेजिंग टेक टिप फॉर यू एंड ऑल्सो विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. हेलो गाइज, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मेरा नाम है गौरव AK TG और आप देख रहे हैं गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी. गाइज, दिस इज द शो जहां पे आपको मिलती है ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपको पॉसिबली चाहिए या कई बार नहीं भी चाहिए. मैं आपको एक्स्ट्रा में बहुत कुछ दे देता हूं फ्रॉम द फील्ड ऑफ गैजेट्स. एंड दिस वीक I am in Cupertino, California, sitting right, in front of the Apple Steve Jobs Theater. और यहाँ से मैंने आपको बताया अभी ब्रेक से पहले that what all Apple announced in their latest event, which is the WWDC, जहाँ पे नया iOS, नया Mac OS, the new Watch OS, in fact, all new Apple Intelligence वो भी आ चुका है. बट अभी It's time to give you some interesting tip because see, हमारे मोबाइल फोन्स जितने स्मार्ट हो जाएं, sometimes guys there's this fear of जब आप फोन देते हो किसी के हाथ में, अगर किसी ने आपसे फोन मांगा है for just to do a basic task, हो सकता है you are trying to show someone a photo in your gallery और आपको डर लगता है कि this person might swipe right and left or sometimes you'd want to keep our personal lives पर्सनल टू अस. लेकिन जब आप फ़ोन किसी के हाथ में देते हैं, चांसेस आर कि किसी का मैसेज आ जाएगा तो अचानक से पॉपअप आ जाएगा सामने एंड यू डोंट नो कि क्या उस मैसेज में होगा. आई हैव अ टिप फॉर यू एंड द सिंपल टिप इज़ यू कैन टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन प्रीव्यूज़. तो वहाँ पे वो जो मैसेज का कंटेंट है वो लिखा हुआ नहीं आएगा. मे बी लेट्स से इफ इट्स अ व्हाट्सएप मैसेज, इट विल जस्ट शो वन न्यू मैसेज. इट वोंट शो कि मैसेज किसने भेजा है या मैसेज के अंदर क्या लिखा है. Guys, please go on to your settings. वहाँ पे you can easily tweak to turn off the message previews. काफ़ी लाइफ आसान हो जाएगी और इनफैक्ट काफ़ी लोग जो कई बार एम्बैरस हो जाते हैं, उनको ऐसे एम्बैरस नहीं होना पड़ेगा अगर मैसेज सामने कहीं पॉपअप हो जाए. कैसी लगी ये टिप बताना ज़रूर, और क्या आप इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो करना यूज़ शुरू कर दो और शेयर करो इस टिप को उन सभी लोगों के साथ जहाँ पे आपको लगता है कि उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. Okay, so guys, there we have it. Now this is the best and my personal favorite section. आपको पता है it's called Ask TG and यहाँ पे my responsibility is to answer all your questions जो भी आपने पूछे होते हैं अलग अलग अपने gadgets के बारे में. I'll give you all the answers. Let's see the kind of questions we have for this week's episode.
I mean, okay, I'll give you a very basic answer, brother, which is to just go and check into the sync settings of your phone. अगर आप जब S7 यूज कर रहे थे उस टाइम पे सब कुछ सिंक हो रहा था एंड नाउ यू हैव मूव टू S21 एंड इट्स नॉट वर्किंग, आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पे आपका जो भी पर्टिकुलर अकाउंट है, फॉर एग्जांपल इफ इट्स आउटलुक और मे बी इट्स द गूगल अकाउंट, उस पर टैप करने के बाद में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें सिंक हो रही हैं या क्या क्या चीज़ें सिंक नहीं हो रही हैं. इट्स वेरी ईजी, मे बी इट्स ऑफ, वहाँ पे वो सिंक नहीं हो रहा है एंड दैट्स द रीज़न कि आपको अपने आउटलुक अकाउंट में आपके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं या कैलेंडर जो डिटेल्स वगैरह हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं. तो जस्ट टर्न ऑन दैट सिंक एंड उसके बाद में आपका जो मोबाइल फ़ोन का जो भी कंटेंट है वो इजीली सिंक हो जाएगा विद योर आउटलुक. Do home appliances stop working or trip in peak summers due to heat? Is it a cause of concern when this happens? See, yes, it depends because sometimes if you talk about excessive heating, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है और आप जानते हैं कि कोई भी अगर अप्लायंस होगा while it's working, वहाँ पे भी आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देता है. एंड लेट्स यू टॉक अबाउट एन एयर कंडीशनर जहाँ पे एक आउटडोर यूनिट है, वो ऑलरेडी धूप में है, बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड वो भी लगातार काम कर रही है. तो अंडर सर्टेन सिनेरियोज यू माइट फेस दिस इशू कि जो आपके अप्लायंसेज हैं वो ठीक से काम ना करें जैसा आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो काम करेंगे. हो सकता है वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी आपको ना दें या हो सकता है काम करना बंद कर दें या ख़राब हो जाएं. एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में दिस इज़ डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी. Do hard drives stop working if you don't use them for a long time? I have a hard drive that just won't work. I'm using it after 6 years. See, I would recommend कि आप अगर एक हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं ना, you periodically plug it in और आप उसको यूज़ करते रहें because 6 years to be honest is a long time duration. Second thing is because hard drives they are a mechanical device जहाँ पे moving parts होते हैं, चीज़ें spin करती हैं, तो हो सकता है over time because of dust या maybe some other breakdowns वो mechanically अगर काम नहीं कर रही है and that's the reason you are not able to access your hard drive. So guys, there you have it. That's everything in this week's episode of your favorite gadget show, Gadgets 360 with Technical Guruji. And I mean बड़ा मज़ा आता है, whenever I am outside of the studio, कहीं जब travel करते हैं for some special event and I try to cover everything straight from the venue. कुछ ऐसा ही मैंने इस बार भी किया है. Guys, let me know whatever is your feedback. आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ सुझाव होंगे, whatever the case might be, you know the address. It's pretty easy. tg@ndtv.com. I'm gonna read all your emails. मेरी टीम सबको पढ़ने वाली है, मैं भी ध्यान से पूरा पढ़ता भी हूँ और आपको उनके जवाब भी देता हूँ. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और आप इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का बिकॉज नेक्स्ट वीक it's going to be even more fun with even more gadgets straight in this show, which is again once more your favorite Gadgets 360 with Technical Guruji. Guys, that's it for this week's episode. See you all next week. Have a good day.